discussion about mechanism of breathing and regulation for the process of breathing or respiration, right? As far as mechanism of breathing is concerned, the basic thing to understand is, in order to have an inspiration, there is a need to increase the volume of thoracic cavity, while for expiration the volume of thoracic cavity should decrease. Now you recall that what are the reasons behind inspiration, that is increase in the thoracic volume. First is elevation of the ribs, that occurs due to contraction of external intercostal muscles, and flattening of the diaphragm, that occurs due to contraction within muscles of diaphragm. So you call muscles of internal extracostals and muscles of diaphragm as inspirating muscles or muscles of inspiration. Likewise, the muscles of abdominal wall and internal intercostal muscles are responsible for decreasing the thoracic volume and hence expiration. So you call them muscles of expiration. As far as regulation is concerned, we have seen that regulation occurs due to centers that lies in pons and medulla oblongata, such as dorsal respiratory group, ventral respiratory group, which lies in medulla, while pneumotaxic center that lies in pons. They together regulate rate of breathing and depth of breathing in various circumstances, right? And we had a small discussion about artificial breathing or mouth to mouth respiration that is done under traumatic conditions or shock conditions, right? Now the next thing we are going to discuss is about lung volumes and lung capacities. Is it okay? What we are going to discuss is lung volumes and lung capacities. Is it okay? Now by definition, these two are different things, so we should first focus on lung volumes, or what is lung volume. As there are many types of volumes, it is plural, but each lung volume is different from other. So basic definition for a lung volume is amount of air. Is it okay? As you can see here, lung volume or pulmonary volume is nothing but quantity or amount or volume of air lungs can receive, means inhale, or hold, means as you know hold within them, or release, that is expel. मतलब human के lungs अलग अलग conditions में, in different conditions, कितनी amount of air ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या अपने अंदर रख सकते हैं, या फिर कितनी अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हैं. दैट इज व्हाट रिसीव, होल्ड और एक्सपेल, नॉट देयर एडिशन. मतलब रिसीव, होल्ड एंड एक्सपेल नहीं, रिसीव और होल्ड और एक्सपेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस आर कॉल्ड लंग वॉल्यूम्स और पल्मोनरी वॉल्यूम्स. Is it okay? It's clearly a volume, means it's a quantity, amount. ठीक? तो फिर कैपेसिटी क्या है, या पल्मोनरी वॉल्यूम अगर ये है तो लंग कैपेसिटी या पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है. तो आप देखो कि किसी भी दो वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स का एडिशन, मतलब पर्टिकुलर टाइप की लंग कैपेसिटी या पल्मोनरी कैपेसिटी. ठीक? लाइक हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरह के पल्मोनरी वॉल्यूम्स या लंग वॉल्यूम्स हैं, और इन अलग अलग तरह के पल्मोनरी वॉल्यूम्स या लंग वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन से बनती है अलग अलग लंग या पल्मोनरी कैपेसिटी. To avoid the confusion of any type, we are going to discuss
different types of pulmonary volumes first, and then we will combine required pulmonary volumes in order to form particular type of pulmonary capacity. So just have a look one by one. We are discussing initially about pulmonary volumes or lung volumes. Then we will move on to pulmonary capacities. Okay, so just don't think about it now. Just have a focus on pulmonary volumes. The first and the simplest type of pulmonary volume is tidal volume. TV is a short form that we are using for what? We are using a short form tidal volume, TV for tidal volume. What is it? It's very simple. देखो, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं या नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो हम एक नॉर्मल डेप्थ के साथ ब्रीदिंग करते हैं, मतलब एक सिंपल अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर लेते हैं और एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर निकालते हैं, तो वही टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल कंडीशंस में किसी भी तरह का हेक्टिक वर्क नहीं कर रहे, किसी भी तरह की दौड़ भाग नहीं कर रहे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम हमारे ब्रीदिंग के थ्रू जितनी अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं या टीवी इन शॉर्ट कहते हैं। एज यू कैन सी द डेफिनेशन कि इट इज एन अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, मतलब अंदर ली जाती है या बाहर निकाली जाती है विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ, राइट, ईच नॉर्मल ब्रीथ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। ओके, और इन जनरल एक अडल्ट हेल्दी पर्सन में उसका वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम जो हम नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं वो कितना है? 500 ml. So what is the quantity or amount of tidal air? That is about 500 ml, जिसमें 350 ml लगभग क्या होती है? अल्वेओलर वॉल्यूम, मतलब जो अल्वेओलाई तक जाती है। और अल्वेओलाई से पहले भी कई सारी चीजें हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, नाजल चेम्बर्स है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। तो इन सारी जगहों पे जो एयर ट्रैप रहती है या जो एयर रह जाती है वो कितनी है? लगभग 150 ml, जिसे हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट डू नॉट रीच अप टू alveoli. So out of the total tidal volume of 500 ml, around 150 ml is a dead space volume that don't reach alveoli, while 350 ml is an amount of air that actually reach the alveolar surface for exchange. तो याद क्या रखेंगे हम कि जो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर की जाती है अबाउट और इन normal breathing process is called as tidal volume, and in adult healthy person its quantity is around 500 ml. Is it okay? Again have a look at definition of tidal volume, and remember we are discussing pulmonary volumes of first type of it is tidal volume. Is it okay? As we have seen the tidal volume as one of the pulmonary volumes, the second type of pulmonary volume or lung volume is what? Your inspiratory reserve volume. Is it okay? पहला क्या था? पहला था टाइडल वॉल्यूम। अब ये जो दूसरा है, सेकंड पल्मोनरी वॉल्यूम है, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इज इट ओके? क्या लिखा है यहाँ पे? तो फिर इससे पहले याद करो टाइडल वॉल्यूम क्या था। टाइडल वॉल्यूम था कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, मतलब इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अब थोड़ा सा अपने साथ ये करके देखो कि तुम अगर नॉर्मली इंस्पायर करो, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग से सांस अंदर लो, तो जितनी सांस अंदर आती है वो है 500 ml टाइडल वॉल्यूम।
लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इससे ज्यादा एयर भी अंदर इंस्पायर कर सकते हो या फोर्सफुली अंदर ले सकते हो। तो जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुली और ले सकते हैं अंदर अपने, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेशन से क्लियर होगा। व्हाट इज रिटन? इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर। व्हाई एक्स्ट्रा? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इंस्पायर्ड नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम, राइट? उसके बाद an extra amount of air that can be inspired forcefully, मतलब वॉल्यूंटरी। नॉर्मली तो ये होगा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो होगा। दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इट इज अबाउट 2500 to 3000 ml, मतलब फोर्सफुली हम चाहे तो इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो दो चीजें हमारे सामने अभी तक हुई वॉल्यूम्स में। टाइडल वॉल्यूम, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज एन अमाउंट और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन inhale or inspire forcefully after normal inspiration. And you need to remember all the numbers or say amounts. Like tidal volume के लिए हमें याद रखना है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 2500 से 3000 ml, मतलब 2500 to 3000 ml. Is it okay? Now ऑन द सेम लाइंस, मतलब जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसमें हमने क्या बोला? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड। उसी का उल्टा सोचो, उसी का उल्टा सोचो। मतलब जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम कितना बताते हैं? 500 ml। मतलब हम 500 ml ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग से, और 500 ml ऑफ एयर एक्सपायर करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, राइट? लेकिन जैसे हम फोर्सफुली ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी तरह से हम अगर चाहे तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मली एयर को एक्सहेल करने के बाद थोड़ी और एयर बाहर निकाल सकते हैं, मतलब फोर्सफुली हम ज्यादा का एक्सहेलेशन या ज्यादा एक्सपायरेशन कर सकते हैं। तो जिस तरह से IRV फोर्सफुल इंस्पायरेशन था, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हम हमारे साथ ये करके देखें तो ज्यादा बेटर तरीके से समझेगा। तुम अगर कंपेयर करोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि तुम फोर्सफुली जितनी अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हो, तुम फोर्सफुली उतनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर नहीं कर सकते। कर सकते हो एक्सपायर फोर्सफुली, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्स्ट्रा अंदर जा सकता है, उतना वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली बाहर नहीं निकल सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसकी क्वांटिटी या उसकी वैल्यू हमेशा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ज्यादा होगी। इसका साफ मतलब है कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इंस्पायर्ड इज मोर देन अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड। इज इट ओके? बट yes, it is a forceful inspiration, and ERV, expiratory reserve volume, is a forceful expiration. As you can see the definition of ERV, it is very much clear that in ERV or expiratory reserve volume, it is clearly mentioned that it is an extra amount of air that can be expired forcefully after normal expiration. जैसे यहाँ था नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितनी एयर फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं, उसी तरह से नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर और बाहर निकाल सकते हैं। तो आप क्लियरली देखो डिफरेंस। IRV की वैल्यू ERV से ज्यादा है, दैट्स व्हाट वी वर सेइंग
कि IRV is always greater than ERV. Is it okay? Now, there is अभी तक कितने पल्मोनरी वॉल्यूम्स हुए? 3. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब टीवी, IRV और ERV. नेक्स्ट चीज जो है या नेक्स्ट वॉल्यूम जो है पल्मोनरी वॉल्यूम, उसका नाम है D, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. नाम से थोड़ा बहुत समझ में आता है. रेसिडुअल मतलब जो रहता है, राइट, जो बाहर नहीं निकलता. वही आपको डेफिनेशन में भी मिलेगा कि इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच स्टिल रिमेन्स इन द लंग इवन आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन. देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इसको ठीक से समझो. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, फिर से एक बार, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली बाहर निकाली गई अमाउंट ऑफ एयर, दैट इज ERV. बराबर. तो पर्सन ने ब्रीदिंग के समय नॉर्मल एक्सपायरेशन किया. नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन किया. उससे कितनी अमाउंट ऑफ एयर लगभग निकलती है? 500 ml. बराबर, टाइडल वॉल्यूम. उसके बाद उसने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया. ठीक है ना, मतलब क्या किया? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इसकी क्वांटिटी हमने कितनी बताई है? ऑन एन एवरेज 1500 ml. बराबर. अब जितना फोर्सफुल हो सके उतना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद पर्सन इतनी अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकालेगा. करेक्ट. लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि लंग्स पूरी तरह से खाली हो गए या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर बची ही नहीं. देयर इज ऑलवेज एन अमाउंट ऑफ एयर which remains within respiratory tract and lungs even after most forceful expiration. तो most forceful expiration मतलब ERV निकालने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर अभी तक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में बची हुई है, उस अमाउंट ऑफ एयर या उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक, वही लिखा है. अब समझ में आएगा कि इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर or amount of air that still remains in the lungs, that is including respiratory tract, even after most forceful expiration. और इसकी क्वांटिटी है लगभग, हम 1500 ml कहें या फिर 1000 to 1500 ml is what the value of RV, that is residual volume. And this is nothing but a quantity or amount of air that still remains in the respiratory tract and lungs even after most forceful expiration. Is it okay? Have a look at these three volumes at once. Now, after these four volumes, that is tidal volume, IRV, ERV and RV, there are capacities. Is it okay? There are capacities.